इसको एड्रेस करने के लिए हमने एक इंडो नेपाल जॉइंट एक्शन फोरम बनाया हुआ है, जिसमें हमारे कोई 32 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं, जो नेपाली ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में जो यहाँ इस तरफ जो नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जो संस्थाएं काम करती हैं उनका भी हमने एक गठजोड़ बनाया हुआ है। तो ये चंपावत से लेकर के पीलीभीत के बॉर्डर तक जितनी भी संस्थाएँ काम करती हैं उनके साथ हम मिलकर के काम करते हैं। और विशेषकर एक जो टोंगिया पद्धति के ऊपर जो लोग बसाए हुए हैं उनके भूमि के अधिकारों के लिए नरेंद्र भाई जब आए थे तो उसमें हमने बड़ी गहराई से उसके ऊपर चर्चा की थी। उसका भी हमने एक अध्ययन किया है, इसके ऊपर भी हमने एक स्टडी की है, विस्तृत स्टडी की है। और विजय भाई तो जानते हैं, विजय प्रताप जी भी जानते हैं उस सारी चीज़ को। तो वो अभी तक उनको भूमि का अधिकार नहीं मिला, तो वो उनको भूमि का अधिकार जो वन बस्तियाँ हैं उन वन बस्तियों को, वैसे तो उत्तराखंड में कोई 95 वनग्राम है, उन वनग्रामों को रेवेन्यू विलेजेस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए हमारा ये पूरा प्रयास चल रहा है। और उसके ऊपर हमारे सारा डेटा वगैरह इकट्ठा, नई नई जो बस्तियाँ जो बस रही हैं उसके ऊपर भी हम अपडेट करते रहते हैं पूरा। तो इस तरह का कार्यक्रम ये हमारा चलता है। बाकी जो इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और पर्यावरण के जो इशूज़ हैं उसके ऊपर भी हम काम करते रहते हैं। और ये अभी जैसे हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एक मुहिम चलाई है पैरवी के साथ मिलकर के, प्रदीप भाई भी कई बार उस कार्यक्रम में आए हैं, तो वो भी हमारा एक हिस्सा है। तो ये अब इन सारी चीज़ों के साथ निकल करके, और जो भी आप जैसे विजय भाई के तो हम पुराने सिपाही हैं और जो हमको जिम्मेदारी देना चाहेंगे उसके लिए आप काम I start from the other end. He says we have been old colleagues since JP movement 74, 73. We have been in the same movement, and we are also colleagues. He mentioned the climate crisis. The alliance is called Beyond Copenhagen, and in that he is critical in organizing workshops on a state action plan of Uttarakhand. Our states are mandated to have formulate there is a national action plan on climate change, and there are state action plans also. So Tej Singh Bhandari has organized meetings, two meetings on state action. नहीं, जो लार्जर कॉमन जो हुई थी सिद्ध में वो पहली थी ना, उसके बाद 3 और हुई। So with 4 meetings, one the larger one and 2 larger and 2 regional meetings he has organized on Copenhagen, and he has described other issues like there's a big debate how to convert 1 gram villages into revenue villages, and these 32 organizations, Indo-Nepal Joint Action Forum, then migrants' challenges against injustice on the border. So all those issues, and he is also saying whatever we collectively work out, he is a willing partner in that. He used the word volunteer, but he is in a situation where he can lead the initiatives. And when he started, he said he is voter of Pradeep Tamtaji, and so there's a dangerous homogeneity around the table. नमस्कार, मैं मनोज सिन्हा और मैं नेपाल से। Manoj was earlier with, now also with SEDET, in the SEDET sense, in a not as a regular employee but as a consultant for our website. But the Dalit work, he has taken the lead, Indo-Nepal dialogues on Dalit empowerment, but we don't put the word Dalit in those actual things, because our shared view is that Dalits have to lead the entire society. They are the most oppressed, so they have a vested interest in peeping into the future, which adopts a egalitarian development model. So he has created an organization with Rajendra and Jeet, but the meetings which he has organized is as a collaborative effort of 3 other organizations from different ideological streams, and their own is not identified with any particular political party. The last
meeting was on this bottom-up planning, and before that in January there was a meeting in which all the major parties, Dalit representative, constituent assembly members had come, including some from the Politburo members of Maoist Party, which in my assessment practice a lot of untouchability vis-a-vis us. So they also came, and people, Dalit leaders from Tarai region also came, and the topic discussed was dignity, dignified livelihoods and sovereignty of Nepal, need for South Asian conversations and People's Alliance. So, and it was very sort of energizing that people from Madhes to UML to Nepali Congress, there was a kind of convergence and coherence of perspective there. We are not very clear how to do the substantive follow-up in a comprehensive manner. So we have sort of delimited ourselves on this bottom-up planning, dignified livelihoods. But the issues which Tej Singh ji has underlined, we want to do all these issues with a kind of generic banner, Border Social Forum. So, and I'm mentioning all these things that these are all open. We have to apply our minds and decide on something, at least some newer things. The older things can continue, and we can continue in same old informal fashion. But sometimes to increase impact, we have to formalize certain initiatives. So I would like, even after this meeting, we keep in touch with each other and clinch on something which makes impact on the larger debates. For example, this Pancheshwar thing is very important, that the activists on both sides meet and discuss in a threadbare fashion the ecological implications and even development implications. Because Poon Dayal ji's response was different, that we had thought only as a blessing, and now if it is not going to help the local population and it is going to cause ecological damage, then what is the point of our... But he's right about the popular expectations from it. They are very high. So we should go and study those expectations on the ground, and are they realistic and scientific given the experiences of big dams, or so we have to do such things also which have a longer gestation period and lot of hard work on the ground of research, of interviewing people. So we have to sort of zero in on couple of things which we can handle and do and make a difference. Good afternoon, everyone. My name is Virat and I'm from Nepal. You should please, not long, but 2-3 lines about each one of your work or association. Birod has been sort of, how to put it in shorthand. I describe his work. He go on internet, he studies all Nepali papers, both in English and Nepali, makes a summary of the news and send it to the SADET network, whosoever is interested. So he's faster than our IB and RAW in terms of feeding and monitoring Nepal democracy developments. So you can contact him if you are interested to be on board about debates on democracy, only the headlines. मेरा नाम विद्याभूषण है, मैं बिहार से हूँ और सैडेट का प्रभारी भी हूँ, और मैं 77 में बिहार असेंबली का मेंबर भी था। लंबे पीरियड तक सोशलिस्ट मूवमेंट और ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी मैं चिंतित हूँ कि इस देश का गांव खस्ता हाल में जा रहा है, और उसी इशू पर सैडेट से जुड़ करके बिहार में काम कर रहा हूँ, और अनवरत हम 2008 से इस काम में लगा हुआ हूँ। I am SADET functionary responsible for Bihar work, and I have been in the socialist movement. At the moment I am concerned about the future of our villages,
and with that crisis in mind, I am working in villages of Bihar with other organizations. मैं राधानाथ प्रधान ओडिशा बोलिए थोड़ा माइक जरा आगे कर लो। जोर से। आंग्ल भाषा में बोलिए जी आंग्ल भाषा में बोलिए हम लोग आंग्ल भाषा बहुत कम समझते हैं, इसलिए हिंदी भाषा लोग समझने वाले बहुत है ना यहाँ, इसलिए हिंदी में बोलना ठीक है। तो मैं राधानाथ प्रधान, कलाहांडी जिला उड़ीसा, और कई महीनों से मैं यहाँ सेक्रेट में हूँ विजय प्रताप जी के पास, और यहाँ का मैं कार्यकलाप को निरीक्षण कर रहा हूँ। और मैं पहले मेरी जो पब्लिक सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ मार्क्सिज्म से या कम्युनिज्म से, उसके बाद मैं किशन पटनायक जी के संस्पर्श में आकर गांधीयन सोशलिस्ट हो गया। गांधी तो सोशलिस्ट नहीं कहा जाए गांधी को, किंतु लोहिया और जयप्रकाश वगैरह ये सबको एक जगह ला करके एक गांधीयन सोशलिस्ट बना में वो चलाया गया है नाम। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि गांधी सोशलिस्ट नहीं थे, और गांधी सोशलिस्ट नहीं थे तो मैं भी सोशलिस्ट नहीं हूँ उस तरह का। और मैं अभी गांधी या लोहिया किसी किस्म के सोशलिस्ट नहीं हूँ, और मेरा कोई इज्म अभी नहीं है। और मेरा जो अतीत का जो अभिज्ञता है, जो अनुभव है, उसके मैंने कैपिटल कर करके उसको पूंजी कर करके मैं मेरा विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अध्ययन के माध्यम से और सोच के माध्यम से। और मैं दिल्ली में इसलिए हूँ कि इस बारे में मेरा कुछ आगे बढ़ने का कोई मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा। और स्टार्टेड का मैं देख रहा हूँ कि ठीक चल रहा है, तो ऐसा काम हम पहले करते थे। किशन पटनायक के पास में जब था, हमारा जो सोशलिस्ट संगठन था, ऐसा ही काम हम करते थे, और मैं भी मैं इन्वॉल्व बहुत था। और अब मैं लेफ्ट हो गया हूँ। आई हैव लेफ्ट तो इस तरह का मैं अभी इस तरह का स्थिति में हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखना जानने के लिए मेरे बाकी है। और आप जो आए हैं फिनलैंड से, जो क्या कहते आना और एक जनरल में आए हैं, मैं I become very delighted and pleased to meet her and to have interaction with her, and I expect that we'll have further interaction in future also. And she is a very fine lady. So ये मेरा रुचि है, परिचय है। I'm Radhanath Pradhan from Odisha, Kalahandi. I started my public life with Marxist, then became Gandhian socialist, and now I am for some months with SADET, and I realize I am no more even a Gandhian socialist. I used to do similar work what SADET has been doing in association with the famous socialist ideologue Kishan Patnaik, but SADET in its framework is doing good work, but I no longer believe in that, and I am trying to sort out and evolve my own ideological perspective through two things, reflecting on my past experience and observing and reading, and my primary thing is to evolve my own new positions rather than work on SADET as an agenda. And I like to continue my conversations with Yana, which he describes as a very nice person. My name is Vijay Bharatiya.
I represent South Asia Peace Alliance. I'm very happy to be here in this meeting because I feel there's a lot of synergy that is happening here. And South Asia Peace Alliance works on non-violence and peace issues in South Asia. We have got network partners in each country, and we work through partners. And our mission is to empower the community in how they can resolve the conflicts non-violent ways through advocacy and mobilization processes. And peace and justice is one of the basic things we emphasize on. And one of the current issues which we're trying to focus in South Asia is on the land issue, trying to see that how the land issue could be mainstreamed in South Asia. And we do organize some training programs for the young people. And I recently been to Nepal just last week, where I happened to interact with some of the trainers who got SAPA training programs. And interestingly, I found that they were all working with the community, and there were a lot of things. They felt the conflicts that's happening there, and they want to do something about it. And one of the conflicts which we saw in the Nepal border, they were very eager that how jointly we can work on that issues. So I see a lot of possibility Which there. area on the border? It's Lahana, Janakpur. There's a lot of possibility there. The youths are very active there. They want to do something. And one interesting dimension which Vijay Pratap can help, I feel, is that there are young people who want a different political dialogue. They want to see what alternatives platform can be created for young people who are frustrated with the system. So they want to understand the political processes and what intervention they can make. So they will be very eager to meet you and have a dialogue with you so that they can also gain some insights of what's happening here. And I think there are a lot of possibilities. SAPA and SADET working together in future possibilities are there. I think we can work on that issues. Thank you. मेरा नाम रीता कुमारी, मैं बिहार के रहने वाली हूँ। दिल्ली में प्रवासी जनमंच के बीच काम करती हूँ, साइडेट से जुड़ करके। लोगों की सरकार की नीति क्या है, लोगों की व्यवस्था क्या है, उस पर मैं काम करती हूँ। जैसे कि राइट टू फूड है, पानी का निजीकरण, जल संवाद, पानी पे अमीर लोग कैसे पानी को मिसयूज करते हैं, गरीब लोग पानी के लिए कैसे तरसते हैं, तो उस पर हमने फिल्म भी बनाया है। तो ये सब पर मैं काम करती हूँ। किसी का जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हक दिलाने के लिए उसको अधिकार कैसे मिलेगा, मजदूरों को कंपनी में यदि कुछ हो जाता है तो उनके लिए भी काम करती हूँ। I'm Rita. Through SADET, I work on the Migrants Forum for immediate crisis situations of accident and compensation, those kinds of issues, and right to food and water privatization through different forums. There's a right to food campaign, and SADET also is trying to build nobody should sleep hungry, and Jal Samvad is on water privatization issues. Myself, Bharmati Panchayat from Odisha. I am working with the SADET last 2 years. Thank you. Bhanumati is in charge of our data on networks, and it's quite looks simple but quite a complicated job. You have so many meetings and so many associations and so many networks. My name is B.T. Padmanabhan. I am not an invitee to this conference. I came here. I am working on the Russian-built Korangulam nuclear power plant in Tamil Nadu, and there are certain serious safety violations. I have come to Delhi to brief some of the big people here about those issues, and my friend who has been working with me on this issue, Asit, contacted Jay Singh and said that something has to be discussed, so I just came. On the sidelines, I am ready to talk to you about what are the serious safety violations which have happened there. It is being built on a volcanic land. Thank you very much. Sir, you have been formally also invited. Thank you. And SADET meetings are always open. But in addition to that general principle of openness, your name was discussed, and we were only wondering, since we'll be discussing a lot of programmatic things, about your time. So, but you have been invited and you are always welcome
you are part of the SADET. It's a two-way thing. Okay, thank you very much. My name is Narendra, and for the past some years I've been associated with the Adivasi tribal region of Bastar in Chhattisgarh. Some years meaning some decades. Yeah, about About? yeah, 30 years plus, something like that. So, no, one survives there because it is a place which offers so many possibilities for alternate models that we have been talking here. So that's what I've been trying to explore, and also to some extent carrying out some very ground level activities on how the Adivasi worldview, which is what we call indigenocracy in other words, how it is rapidly being demolished, and that demolition is a logical outcome of the current models of governance, economy, trade, social organizations, political organizations. वो तो उसमें होना ही है, वो चाहे ट्राइबल मॉडल है या कोई किसान मॉडल है या गांव का मॉडल है, कोई भी वो उसमें खत्म ही होगा. But that alone is sustainable. So what can be done? What can be done at the village level? At the village level, to begin with, what kind of institutions can be revived? What kind of skills can be, nurtured? What kind of practices? What kind of conversation? Because conversations are disappearing now. For example, with the coming of modern medicinal system, the entire universe of conversations around traditional healing is gone, which had place for God, which had place for, ethics, which had place for free treatments, and which was sort of, linking communities up. So all those conversations, often we think conversations is just, we don't really attach much value to it, but how vital a particular conversation is to a community, it's of immense significance. Really. So how can we preserve these practices, these skills, these institutions, these conversations, these models, which alone are sustainable? Often we talk of, I also talk and we hear it also, whether in the media or in meetings or here and there, as if sustainability and durability are the same thing. ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की होती है भाई, ड्यूरेबिलिटी समाज की नहीं होती, समाज तो सस्टेनेबल तरीकों से उसकी बात की जाती है. सो जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर at the micro level of Bastar, and Bastar is bigger than Belgium, so you can understand what micro it would be, and that is what I found this resonance of my experience and my friends' experiences in Bastar. I found this resonance in SADET, and that's why for the past several years I've been a part of SADET and of Vasudhaiva Kutumbakam, because the worldviews I find, whether they are folk worldviews or Adivasi worldviews or practices, forums like SADET and VK and a few other networks like NA and others, they sort of provide a platform for highlighting these issues. So I think that's all that. मेरा नाम मनोज प्रसाद है, मैं सैडेट में काम भूगोल तो बता दो अपना. मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ. यहाँ पर सैडेट में मैं रिपोर्टिंग का काम करता हूँ और साथ ही कल्चर, कुमाऊनी कल्चर को लेकर मैं थोड़े छोटे छोटे काम करता हूँ ज़्यादा. Manoj's sister, Dr. Saraswati, has documented a lot of Dalit idioms and cultural practices of Dalits in that region. And her PhD is also on this, and postdoctoral work is.
So we have all those manuscripts with us. So I had earlier mentioned you that Dalit, non-Dalit dialects, of some of which you have also shared and honored. So we should, I think now we should publish those things. So we are not very clear about the auspices, forums on which, like these 32 organizations, if they all publish it together, then there will be more readership. Otherwise, NGOs publish something, or even social science institutions publish something and nobody reads them. Publisher get their commission. So before you get into your Lok Sabha election in 6 months or 1 year, before that war mode, we should decide how to publish these things. My name is Chotan Chandra Das. I am from West Bengal, Burdwan district. Working in SADET office from 2002 February still now 2012. अभी जारी है? And I am very happy. So many places, SADET office, and बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है SADET ऑफिस में, और बहुत शुक्रगुजार हूँ SADET का, जो कि मुझे एक अच्छा, मैंने सोचता हूँ मैं एक अच्छा ठीक ठाक लड़का बन गया हूँ, जो कि मैं काम भी कर सकता हूँ। ये मेरे को SADET से ही मिला है, जो कुछ भी मिला है। इतना झूठ मत बोलो। He's telling all lies, but still I have to translate. He says, what I am and what I have achieved, it's because of SADET. It has given me the opportunity to learn so many things, and I'm very happy about it. पैसा तो थोड़ा ही मिला है महंगाई के जमाने में। वो तो सब बोल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे राधा नाथ जी। आप तो गैर लेफ्टिस्ट होने पे गड़बड़ हो गए हैं। रमेश जी, मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं अभी SADET में काम करता हूँ। मेरा नाम रमेश सिंह है और मैं अभी SADET में काम करता हूँ। क्या करते हैं? ऑफिस के किसी भी काम में मदद करता हूँ। I am Ramesh Singh. I help in any of the office work. चलिए। I'm Vijay Lakshmi Nondia. I'm working as an editor in SADET. मैं शहनाज हूँ, अहमदाबाद गुजरात से, और मैं अरमान महिला कोऑपरेटिव समिति चलाती हूँ, जिसमें पतंग बनाती हुई लेडीज़ का संगठन है, और उनके हेल्थ, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके वाटर प्रॉब्लम्स, और उनको गवर्नमेंट से लोन दिलाना, ये सब काम करती हूँ। और सेव शर्मिला सॉलिडारिटी कैंपेन में मैंने 23 दिन यात्रा की, और 20 राज्य में हम गए और शर्मिला के लिए, और 26 अप्रैल से हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भुज से बॉर्डर तक 5 दिन की पद यात्रा करने वाले हैं। 26 अप्रैल। NAPM के साथ। I'm Shahnaz from Gujarat, and I have toured कितनी states? 20। Toured 20 states for Save Orome Sharmila campaign. Most of you might remember Orome. She is on fast against this Special Armed Forces Act, Special Powers Act, for last more than 10 years now, and Asit had also participated. He has written on it, so they have worked jointly, and Shahnaz came in contact with SADET recently through this work, and now from 26th April for Hindu-Muslim unity from Bhuj in Gujarat, they are organizing a Padyatra. And she has mentioned some cooperatives, but she is also active in a political party there, important activist in the women
wing of that party. And she is also associated with the media. I am Rajnikant Mutkar. Most of the life I was connected with journalist unions. I was president of Hindustan Times Employees Union, Delhi State Newspaper Employees Federation, All India Newspaper Employees Federation, and worked in unorganized sector also in Shadra Vishwas Nagar area. Recently, I am associated with SEDIT, working on water issues also, and under VITA, I also work this internal migration for Pravasi gentlemen and all. And hobby is to listen all activists. आपका परिचय मेरा नाम खलील मोहम्मद है। और मैं दिल्ली यंग आर्टिस्ट फॉर्म के साथ में थिएटर वर्क करता हूँ और थिएटर ट्रेनिंग भी करता हूँ। सदर भाई कुछ इनके काम के बारे में, यंग आर्टिस्ट फोरम में भी है नहीं? हाँ, दिल्ली यंग आर्टिस्ट फोरम में काफ़ी पुराने साथी हैं और उन्होंने दिल्ली दूर है नाटक जो किया था, करीब 125 शोज किए थे दिल्ली में और काफ़ी सराहा गया था। काफ़ी अनुभवी साथी हैं, हाइट में काफ़ी छोटे हैं लेकिन हाँ काफ़ी काम किया और अच्छा खासा पिछले 3 सालों का ठीक ठाक बहुत फास्ट अनुभव है इनका। बिहार में जो पदयात्रा हुई थी 9 दिन की, उसमें भी शामिल थे और दिल्ली में जो साइकिल यात्रा हुई थी 12-13 दिन की, तो उसमें भी काफ़ी शामिल थे। Last 3 years he has very rich experience and learned a great deal. He is very important worker of this artist forum, and in Delhi Padyatra on cycles for this distress of migrants born out of the displacement due to floods, and in Bihar Padyatra also he played a crucial role. Shyam, your introduction. मेरा नाम श्याम सिंह है। मैं उत्तराखंड का मुझे जगह रहने वाला हूँ। 5-6 साल से सेडेट के साथ जुड़ा हूँ। सेडेट के कार्य में मदद करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी। Also, he knows what stock there is in SEDET. None of us knows it. It's a jungle. Pradeep ji, now you have to lead. You are just leading. No. We can show you your clip if you have forgotten on Himalaya. Just 5 minutes or 4 minutes. It's a long clip on Himalaya. But today we are discussing this bottom-up planning issues and how discrimination issue also comes in this development planning. So Jeet and Rajendra will be speaking, but if you could sort of introduce, if you don't trust, we can show you the 4 minutes of your. We have the full slide. We can just show. Your previous speech in Himalaya Day, Himalayan. लाइट बंद कर दो शाम। मनोज जी, प्रदीप जी का नहीं हो रहा, ये तो आप करोगे।
फाउंडेशन में थोड़ी है, ये तो स्पीकर हॉल स्पीकर हॉल में था। गलत एडिटिंग हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गांधी लेफ्टिस्ट है, ये अलग बात है। हर चीज गांधी की फाउंडेशन से लगा दिया। गांधी कब लेफ्टिस्ट? ये गांधी का लेफ्टिस्ट गांधी को लेफ्टिस्ट बनाया जा रहा है। गांधी जो होते थे वो ठीक थे। बंद कर दे। बस वायर की कमी है, सीडी हमारे पास है। नहीं, मैं तो क्योंकि आपकी थोड़ा सा मैं देर में इसलिए था, मुझे एक तो यहाँ की जानकारी नहीं थी और मनोज ने ईमेल किया था तो वो ईमेल मुझे मिला ही नहीं। और मैं ग्राउंड बैठा था, मेरे पास गाड़ी भी आज स्टेशनरी की जो पर्सनल थी कहीं गई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा संपर्क हुआ। 2-3 बातें हैं क्योंकि आज ब्रॉडर इशू है। ये तो पूरी दुनिया में इस समय जो हम 20वीं सदी में आए हैं, 20वीं सदी पूरी दुनिया के संदर्भ में नए विचारों का युग था, संघर्षों का युग था, चाहे कॉलोनियल के विरुद्ध संघर्ष रहा हो देशों का, और एक ट्विन टोटलिटी में ह्यूमैनिटी का, व्यक्तियों का मेरिट के हिसाब से डेमोक्रेसी का स्ट्रगल था। अभी 21वीं सदी तलाश रही है अपनी जमीन को कि जो 20वीं सदी का स्ट्रगल था, संघर्ष था बुनियादी समता का, वो मेरे ख्याल से अभी भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं और अपना कोई 21वीं सदी बना नहीं रही। पूरी चमकती हुई दुनिया में किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, ये सब हमारे सामने है। तो उसी दौर में आज फिर हम सबको जो अपने अपने रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास क्षमता है, ऊर्जाएं हैं, उसको किस ढंग से लोग नए सिरे से उसकी परिभाषा करें, ये फिर एक प्रश्न है। मध्य हिमालय ही नहीं, क्योंकि हम जो आपने दिया है कि स्ट्रगल फॉर डिग्निटी एंड लिबरेशन सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय, मध्य हिमालय एक फोकस है छोटा सा, जिसमें मुख्यतः अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हमारी उत्तराखंड और हिमाचल की स्टेट है, लेकिन पूरा का पूरा जो हिमालयन इसमें एरिया है उसको आप हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से अलग करके भी देखना पड़ेगा। जब हिमालय के बारे में कहते हैं उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा है, नेपाल है, भूटान है, और बहुत बड़ा उधर की ओर चीन, जापान, हमारी कविताएं पढ़ते थे वो मध्यस्थ खड़ा है बीच में हिमालय, उस पार जापान देश, तो उधर का जो चाइना है, इसमें जो तमाम संप्रदाय हैं उसमें कभी कभी बहुत सारे विरोधाभासी वो स्टैंड सरकारें भी खुद ले लेती। मैं तो यही करूँ, जब से हमने देखा विद्यार्थी जीवन से अभी भी हिमालय के लोगों का अपने एक डिग्निटी के लिए स्ट्रगल अभी भी जारी है। अलग अलग पड़ाव में रहा। जब हम विद्यार्थी थे हम लोगों ने भी एक पदयात्रा की, आज भी पदयात्राएं चल रही हैं, राजनीति में भी चल रही हैं, और पदयात्रा है। हर व्यक्ति जब पदयात्रा करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो अपने आप को अगर रियली में पदयात्रा एक अच्छे उद्देश्य करता है तो रिफ्रेश होकर के स्ट्रेंथ अपने आप को मजबूती उसके अंदर आती है। ये हमारे पास्ट में भी रही हैं और आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। हमने उस समय देखा था कि हिमालय का एक ऐसा चरित्र हो गया है, हम कहते हैं पूरी दुनिया को, हम भारत की को प्यास बुझाते हैं, हमारी वहीं से पानी निकलता है, उसी तरह हमारी जवानी भी निकलती है। और ये सिर्फ हमारे हिमालय का नहीं है, सभी जगह के हिमालय का होगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ बैकवर्ड है वहाँ का है। लेकिन वहाँ के लोगों की अपनी स्थिति क्या है, खेती के संदर्भ में, खेती पर, जंगलों पर निर्भर है, पानी पर निर्भर है, उसकी जो हालात पहले भी थी। हम लोगों ने वन आंदोलन भी किया। आज पहाड़ का, हिमालय का जंगल तो बच गया, लेकिन जमीन पर संकट है, जल पर संकट है। जल, जंगल, जमीन, तीन हिमालय की बहुत ही बुनियादी संपत्तियां हैं, और वो हिमालय से निकल करके चाहे
हिमालय के फूट हिल्स में तराई बाबर हो या रेस्ट ऑफ द कंट्री, भारत हो, नेपाल के जो रेस्ट ऑफ प्लेन्स हो, उन सबको अपने अपने उससे संपन्न करती है। जंगल को बचाने का एक बड़ा संघर्ष हुआ हिमालयी क्षेत्र में, उसको दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया। हम सब आज पूरी दुनिया में जंगल संपदा को बचाने के लिए एक नए सिरे से चिंतित दुनिया बचा रही है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हिमालय पर जो संकट है वहाँ की जमीन पर और वहाँ के जल पर है। और मेरे नेपाल के जो साथी लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, वो भी इस चीज़ को देखे होंगे। मैं सिक्किम में गया था, एक हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी के उसमें, तो मैं तीस्ता नदी को देख रहा। तो तीस्ता नदी हमारी तो वैसे सबसे बड़ी नदी गंगा है, अलकनंदा, भागीरथी, मिल्को, गंगा। लेकिन जब मैंने तीस्ता के वेग को देखा तो मैंने कहा तीस्ता तो इससे भी बड़ी जीवित, गंगा से भी ज़्यादा बड़ी जीवित नदी है। और उसमें भी मैं गाड़ी से अपनी कार से जब जा रहा तो पार जब देख रहा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने विकास के जो नए मॉडल है डैम बनाने की परिकल्पनाएं कर दी। पूरे इंटायर हिमालयन क्षेत्र के पानी पर, जल पर आज हमारी नज़र है और दुनिया की नज़र है। और उसका उपयोग हम किस संदर्भ में कहना चाहते हैं, जैसे पंचेश्वर के संदर्भ में हमारे नेपाली मित्रों ने भी कहा कि पंचेश्वर का डैम उनको विकास की नई संभावनाओं की तलाशता है नेपाल के उस क्षेत्र के लोगों के लिए। ऐसी हमारे टिहरी के लोगों को भी टिहरी डैम विकास के नए आयाम की ओर धकेलता था। मैं एक बच्चा था, स्टूडेंट था, जब मैं टिहरी के धरती में था, मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ। हम सब की होती कि फादर माइग्रेशन में जाते हैं तो परिवार उनके साथ जाते हैं, वहीं स्कूलिंग भी होती है, तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में। तो जब मैं वहाँ था, बच्चा था, कक्षा 2 से मैंने वहाँ पढ़ा था। और मैं जब उत्तराखंड की विधानसभा का सदस्य बना तब जाकर के वो टिहरी डैम कमीशन, तो लगा लें कि मेरी जीवन यात्रा की जितनी मेरी उम्र है उसके 90% हिस्सा वो टिहरी डैम की विकास यात्रा रही। और उससे उस क्षेत्र के विकास के बड़े बड़े सपने वहाँ के लोगों ने सजोए थे। लेकिन क्या मिला उन लोगों को? आज वो ऋषिकेश, हरिद्वार की ऐसी जो तराई भावर की जमीन पर वो लोग अपने 2-4 जीवन को कर रहे हैं। विकास की दौड़ में ना उनको पानी है, ना जो सब कुछ मिला वो उनको नहीं मिला। लेकिन वहाँ काम करने वाले छोटे छोटे लोग थे। आज के भारतवर्ष को सबसे बड़ी पहली मोटर रेस की दौड़ दिखाने वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, ये फार्मूला 1 रेस को, जो फार्मूला 1 रेस का आयोजक था वो उसी टिहरी डैम की विकास यात्रा का सबसे बड़ा उदाहरण था कि एक व्यक्ति ने अपनी विकास यात्रा में उस टिहरी डैम से जेई की नौकरी शुरू की और आज हिंदुस्तान में का एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका फार्मूला 1 रेस का। और वहीं हजारों लाखों लोग जो उस क्षेत्र से उजड़ के निकल गए, उनको इस विकास यात्रा में क्या मिला? तो कभी कभी मुझे लगता है कि राष्ट्र की विकास यात्रा में गरीब लोग, पिछड़े लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। क्या वो उस राष्ट्र के हिस्से हैं? क्या उस राष्ट्र को उनके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? तो ये सवाल हम सब के लिए, इसलिए आज हिमालय की जल पर सबकी निगाह है। मैंने कहीं कहा पहले है कि हिमालय पर सबकी निगाह है। आज मुझे लग रहा है, और कभी कभी बड़ी दृष्ट हो जाती। मैंने पार्लियामेंट में एक दिन मुझे मौका मिला था, जब चाइना ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने के लिए सोचता है, हम सब लोग एकदम भौचे के ओर के खड़े हो जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी भी है, हमारा भी हिस्सा, ये लगातार बहने वाली, इससे हमारे हिमालय, पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के अंदर बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। हमारी आजीविका, हमारे लाखों करोड़ों के लोगों के भविष्य पर क्या असर पड़ जाएगा? और जब हम वही सवाल उत्तराखंड के अंदर, सिक्किम के अंदर, आसाम के अंदर बहुत से लोग अपने अपने नदियों पर बनने वाले डैमों पर करते हैं, तो सरकारें विरुद्ध उसके दूसरे धरातल पर खड़ाई हुई नजर आती है। आखिर ऐसा विरोधाभास क्यों होता है? इस पर भी सोचने के लिए। उसी तरह से जैसे पंचेश्वर है, पंचेश्वर टिहरी से भी बड़ा डैम बनने वाला है। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़े गाँव करीब करीब उसमें डूबने वाले हैं। उन लोगों को भी विकास की बहुत स्वर्णिम विकास की बहुत सी तस्वीरें उसमें दिखाई देती हैं, और मेरे नेपाल के साथियों को भी दिखाई देती होंगी। लेकिन मैं जब एक जनप्रतिनिधि के नाते देखता हूँ कि हमारा जैसे एक होता है टिहरी डैम का, वहाँ पर लाखों लोगों को क्या मिला, तब मुझे थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। तब मुझे सवाल होता है कि जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ उनकी बात को उठाऊँ या ना उठाऊँ।
हजारों गांव उजड़ेंगे, हजारों परिवार उजड़ेंगे। उनको बसाने के लिए अगर छोटा टेढ़े के मानते रहते कि हमारी ऊर्जा की जरूरतों के लिए उसकी जरूरत है, डैम बनना चाहिए, उनको बसाने के लिए आपके पास, हमारे पास क्या जमीन है? क्या वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको भी तो उस विकास की यात्रा का कुछ न कुछ लाभांश इस राष्ट्र को देना चाहिए। क्या ऐसी है? वैसे नेपाल के अंदर जो बहुत से गांव होंगे, क्या उन गांव के लोगों को बसाने के लिए कुछ मिलेगा? नहीं। उसमें भी कभी कभी जब रिहेबिलिटेशन होता है तो जिनके पास संपत्ति होती है, जमीन होती है, लैंड की या प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, वो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो जाते हैं, और जिनके पास जमीन नहीं होती उनके हिस्से में कुछ नहीं मिलता। कि तुम्हारे पास तो 1 एकड़ भी जमीन नहीं तो तुमको जमीन के बदले जमीन तो मिलेगी नहीं। सरकारों का फॉर्मूला तो यही है कि जमीन के बदले जमीन मिलेगी। तो ये बहुत से सवाल है। इसलिए नेपाल के पंचायत स्तर से प्रभावित गांव में, हिंदुस्तान के गांव में एक सर्वे तो जरूर होना चाहिए कि उनका विकास भी आगे बढ़े, उनके सपने भी आगे बढ़े। लेकिन जो सपने हमको भयावह लगते हैं उसमें उनके लिए क्या हो सकता है, इस पर एक डायलॉग जरूर होना चाहिए। जब हिंदुस्तान और नेपाल की सरकारें डायलॉग कर सकती है, पॉलिटिकल मतभेद की बात में डायलॉग कर सकती हैं, तो नेपाल और हिंदुस्तान की जनता क्यों नहीं डायलॉग कर सकती? जब अमेरिका और भारत की सरकारें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डायलॉग कर सकते हैं उसके उपयोग के लिए, तो क्यों नहीं भारत और अमेरिका की वो लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी से समझते हैं ये मानवता के लिए अच्छी नहीं, क्यों नहीं एक दूसरे के व्यूज शेयर कर सकते हैं? ये इसकी स्ट्रेटेजी में कि सरकारें डायलॉग कर सकती हैं, दुनिया छोटी हो रही है, लोग डायलॉग नहीं कर सकते। ये सवाल इन्हीं संदर्भों के साथ एक नए, जब हम 21वीं सदी के दुनिया की बात करेंगे, ये सारे सवाल भी जोड़ना चाहिए। इसीलिए आज पूरे मध्य हिमालय के लोगों के सामने भी है, हमारे पास संपदा बहुत है और हमको सब लोग सपने दिखाते हैं कि आपकी संपदा का दोहन करके आपके क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी जो व्यवहारिक अनुभव ये आता है कि जो संपदाएं हैं उससे लोग होते हैं। हमारे वहाँ कृषि की जमीन बहुत कम है। नेपाल में क्या मैं नहीं जानता हूँ, मेरे वहाँ पिथौरागढ़ और बागेश्वर 2 जिले हैं, वहाँ पे जैसे जंगल है उसी तरह जमीन है, लोगों के पास खेती की बहुत कम जमीन है। हमारे वहाँ का जो मानक है उसको नाली कहते हैं, यहाँ एकड़ कहते हैं, तो 20 नाली का 1 एकड़ होता है। अधिकांश जो पर्वतीय क्षेत्र के हमारे मध्य हिमालय के जो किसान है उसके 80% 90% लोगों को है बिलो 1 एकड़ जमीन की। और 2 जगह ये माइनिंग, आजकल आप खड़िया को कारोबार, खड़िया आप लोग समझ रहे होंगे, सॉफ्ट स्टोन का बड़ा कारोबार हमारे क्षेत्र में, और क्षेत्र में कृषि की जमीनें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लोग, सरकारें उनको परमिशन देती है और वो कृषि की जमीन है, एक दिन आप माइनिंग करते हैं वो जमीन खत्म हो जाती है, बर्बाद होता है जी, और वो पिछले आने वाले 50 साल के लिए फिर उसमें खेती नहीं हो सकती। सरकारें अपनी जंगल की जमीन पर किसी तरह की माइनिंग की परमिशन नहीं देती है, लेकिन किसान की जमीन पर माइनिंग की परमिशन देती है। ये बड़ा समझना है कि सरकारों का दायित्व है कमजोर की रक्षा करना, वो अपनी रक्षा तो बखूबी कर ले रही है, जिसके पास कुछ नहीं